नमस्कार। विजय चौक से शानदार दृश्य, विशाल और ऐतिहासिक इमारतें सर्दी के ढलते सूरज की रोशनी में और भी भव्य लगती हुई। पूरा वातावरण उत्सुकता की चादर ओढ़े है। अब से कुछ ही देर में भव्य समारोह बीटिंग रिट्रीट प्रारंभ होगा। इस बार जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे हर राष्ट्रीय पर्व की सज-धज अलग है। बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन स्थल विजय चौक अब गतिविधियों का केंद्र है और थोड़ी देर में यह सैन्य संगीत के जादू का एक विशाल मंच बन जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। सैन्य संगीत और प्रकाश का शानदार और भव्य समारोह है बीटिंग रिट्रीट। Good evening and greetings from New Delhi's Vijay Chowk, the victorious meeting of parts. Today, we will witness one of the most visually stunning and musically flavorful of military traditions that form a part of our Republic Day celebrations. As Vijay Chowk expands, embraces in its folds the coming together of different directions today, all roads lead to this culminating point where military tradition speaks to a republic and martial music gets introduced to millennial sensibilities. In a short while from now, the President of India, Shri Ramnath Kovind, will reach Vijay Chowk. The tricolour will be unfurled during the national salute and the playing of the national anthem. And then the sounding of the fanfare by the buglers will be the cue for Vijay Chowk to resonate with the harmonious blends of quick and slow marches, traditional and modern compositions, and a tapestry of hymns, reels, and stratospheres. And that's why Vijay Chowk is the perfect setting, a spectacular meeting of military tradition, modern sensibilities, public patriotism, and the possibility of self-reflection. इस बार कई नई पहल की गई हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस बार कई नई धुनें जोड़ी गई हैं। ड्रोन का प्रदर्शन है। प्रोजेक्शन मैपिंग से नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की दीवारों पर भारतीय इतिहास को टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शाया जाएगा। गणतंत्र दिवस की तरह ही बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए पर्यावरण के अनुकूल आमंत्रण पत्र तैयार किए गए हैं। इस पत्र को अश्वगंधा, एलोवेरा और आंवला जैसे औषधीय पौधों के बीजों से तैयार किया गया है। इसके जरिए लोगों को इन पौधों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आजादी का 75वां वर्ष, हमारी आजादी का अमृत महोत्सव और इसे विशेष बनाते हुए कई आकर्षण इस बार इसमें शामिल किए गए हैं। प्रोजेक्शन मैपिंग, लेजर शो और 1000 ड्रोन यहां रंगों और प्रकाश का ऐसा प्रदर्शन करेंगे जो हमेशा याद रहेगा। ये सब पहली बार हो रहा है। पहली बार इस तरह का प्रदर्शन बीटिंग रिट्रीट समारोह का हिस्सा बना है। विजय चौक पर गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन। Today we shall see nearly 1,000 bandsmen from the armed services come together with perfect timing and choreography, weaving their own special tapestry of magical martial music and set against the backdrop of the majestic Rashtrapati Bhavan and the gently sloping Raisena Hill. The golden hues of a setting sun will create pictures of extraordinary beauty. So just settle down and wait to be enthralled. The arrival of dignitaries continues here. And here you get a full picture from our specially placed cameras of the entire ceremony. Pictures and visuals that the cameras will give you are not visible even from the ground level because the cameras are positioned at very, very high and strategic points. People kitted out in their warm winter woolens. It's a lovely sunny day. The last couple of days have been sunny, so we're blessed to have sunny skies again today. And it's nice and warm. Warmth has this wonderful way of making itself
weave its way into our hearts, but as the sun sets, the cold nip in the air will return. 29 जनवरी की शाम सर्द है लेकिन बेहद खुशनुमा है। लगातार 2 दिन से धूप खिली हुई, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं उत्तर भारत और खास तौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो सूरज ढलते ही सर्दी बढ़नी शुरू हो जाती है। अनुशासन और धैर्य इस समारोह की विशेषता है। संगीत और प्रकाश के साथ साथ विजय चौक का पूरा इलाका हरियाली और फूलों से सजकर आज की शाम के समारोह के लिए तैयार है। विजय चौक के आसपास का पूरा इलाका जिसमें ऐतिहासिक इमारतें हैं और ढलते सूरज की तांबई रोशनी। In today's era of fast movement, short attention spans and quick turnaround times, the role of traditional ceremonies and protocol is all the more special. History, ceremony and protocol all have a way of giving context, of anchoring the present in a stability that has weathered time. The seamless nature of the transfer and transitions of these traditions strengthen a nation. The beating retreat is a centuries-old military tradition, dating from the days when the troops disengaged from battle at sunset. As soon as the buglers sounded the retreat, the troops ceased fighting, sheathed their arms and withdrew from the battlefield. And it is for this reason that the custom of standing still during the sounding of retreat has been retained to this day. बीटिंग रिट्रीट एक बड़ी पुरानी सैन्य परंपरा है। आप में से बहुतों को यह ज्ञान होगा कि महाभारत और हमारे कई ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि जब शाम को युद्ध मैदान पर बिगुल बजता था तब सेनाएं युद्ध बंद करके अपने अपने शिविरों को लौट जाया करती थी। वर्तमान में रिट्रीट की धुन बजते ही ध्वज को उतारकर उसे सम्मान के साथ ले जाया जाता है और इस दौरान अविचल खड़े रहने की परंपरा है। और इस समारोह में भी यहां अश्व भी और ऊंट भी, ये भी अनुशासन के साथ अविचल पूरे समारोह में खड़े रहेंगे। और अगर ड्रमर्स कॉल की बात करें, ड्रमर्स कॉल यानी ड्रम वादन, ये उन दिनों की यादगार है जब शहरों और कस्बों में तैनात सैनिकों को संध्या काल में एक तय समय पर उनके सैन्य शिविरों में बुला लिया जाता था। वर्तमान में परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है ये समारोह। Magnificent heritage steeped in history. It isn't very often that a show of light and sounds permeates your being with its flavor and leaves one suffused with a sense of patriotism. Under a lovely clear sky, the sun on its way to the other side of the world seems to have also stopped for some time to witness this glorious spectacle of martial music, marching, weaving a wonderful tapestry through intricate choreography. A total of 26 tunes shall be played. All are Indian in their composition. And of course, we have some new tunes also. बीचिंग रिट्रीट समारोह की शुरुआत बिगुल वादकों के फैनफेयर से होगी। उसके बाद अलग अलग प्रस्तुतियां होंगी। कुल 26 धुनें वीर सैनिकों द्वारा बजाई जाएंगी। सेना और सशस्त्र पुलिस बलों के लगभग 1000 संगीतकार आज के इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष विशिष्ट अतिथिगण यहां आज के समारोह के लिए मौजूद और बड़ी संख्या में यहां जनसमूह जो आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने के लिए मौजूद विजय चौक पर।
So seating capacity limited this time, COVID protocol being followed. But the stands absolutely filled with people eagerly awaiting the unfolding of this beautiful ceremony, history harmonizing with the here and now, posterity's desire to capture all of today's exhilarating moments for itself will ensure that we let ourselves enjoy every fleeting minute of this spectacle. Music, men in movement, marching in perfect step, their own patterns, weaving them, their own pictures, creating them. Every bit of beauty here waiting to resonate with the timbre and tones of multiple instruments, pipes, drums, trombones, concert chimes, piccolos and trumpets. सैन्य संगीत और रोशनी का ये समारोह है, बीटिंग रिट्रीट। बहुतों के लिए सैन्य संगीत का ये पक्ष अनदेखा और अनसुना ही रह जाता अगर इस समारोह के माध्यम से ये हम तक न पहुंचता। जो अनुशासन, लगन, सेना की पहचान है, वही संगीत के सुरों के साथ यहां पूरे निखार में दिखती है। इन संगीतकारों की टुकड़ियों की अलग अलग फॉर्मेशंस बनती हैं, मार्च भी होता है, ये संगीत की ताल पर थिरकते भी हैं और जैसे संगीत का दरिया बहता रहता है। As January draws to a close, a perfect evening inviting us all to embrace the moment. Time in the past tense seems to have flown by. Time in the future tense tends to approach slowly. It is only in the present that it is alive, energized and happening. So, once again, a request to settle down, put all thought to rest and let the senses rule as you experience sign and sound. विजय चौक पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आगमन, तीनों सेना अध्यक्ष से मिलते हुए और अपना स्थान ग्रहण करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। The mellowing rays of a benevolent sun, nourishing our presence with its warmth, and the warmth of national pride that warms our spirits, uniting us as a people, as a nation. The three service chiefs, Chief of Army Staff, General M.M. Narvane, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary, and the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, along with Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh here, will await the arrival now first of Prime Minister Narendra Modi. And then they will wait to greet and meet the President of India, Shri Ram Nath Kovind, who is the chief guest for today's celebration. और इधर ये दृश्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से, जहां से कुछ ही समय में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद प्रस्थान करेंगे विजय चौक के लिए। बीटिंग रिट्रीट समारोह, जिसके वो मुख्य अतिथि हैं, समारोह पूर्वक यहां से प्रस्थान करते हैं। राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने रायसीना पहाड़ी से उतरकर वो स्थान विजय चौक, जो आयोजन स्थल है बीटिंग रिट्रीट समारोह का। रायसीना पहाड़ी से उतरते हुए विजय चौक के दोनों ओर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय, कार्यालय, The President of India, Shri Ram Nath Kovind, the Supreme Commander of the Armed Forces, departing from the forecourt of Rashtrapati Bhavan. माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। समारोह पूर्वक वे दरबार हॉल से रामपुरवा वृषभ से गुजरते हुए प्रांगण की ओर अग्रसर। उनके साथ उनका सैन्य स्टाफ है,
राष्ट्रपति के सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फणसलकर और मेजर रोहन चौहान और मेजर रोहित रसगोत्रा। उनके सैन्य स्टाफ में सेना के तीनों अंगों के अधिकारी शामिल रहते हैं। पहले गणतंत्र दिवस से ही माननीय राष्ट्रपति इसी प्रकार समारोह पूर्वक प्रस्थान करते हैं। प्रांगण में आगमन पर उन्हें राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक गुलामी देगा राष्ट्र सल्यूट मध्य प्रदेश। "46 bodyguards on magnificent bay and dark bay-colored mounts. The President of India, Shri Ramnath Kovind, escorted by the President's bodyguard, will now move towards Vijay Chowk. The President's bodyguard, raised in 1773, the senior-most regiment of the Indian Army, राष्ट्रपति अंगरक्षक अनुरक्षी बनेगा सेक्शन सैनिकों कदम कदम। The commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen. He is mounted on his charger Virat, who has been awarded with the Chief of Army Staff's commendation on the occasion of Army Day 2022, and is the first charger horse of the President's bodyguard to receive the commendation card. Virat is a veteran of over 13 Republic Day parades, and as the charger is escorting the Honorable President of India, today is his last beating retreat ceremony, and he was given on Republic Day a very emotional farewell, also by the President, the Prime Minister and the Defence Minister. विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से माननीय राष्ट्रपति महोदय का प्रस्थान विजय चौक की ओर। उनके साथ 46 सजीले घुड़सवार अंगरक्षक। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण अंग्रेजी अक्षर टी की शक्ल का। मुख्य द्वार तक दोनों ओर हरियाली, नहर और फव्वारे हैं। प्रांगण की लाल बजरी लाल कालीन की तरह चमकती है। माननीय राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक जिनकी कमान संभाली है कर्नल अनूप तिवारी ने, द्वितीय कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। जयपुर कॉलम, ये तस्वीरें हर बार हम देखते हैं, लेकिन हर बार और भी भव्य लगती हैं और भी यादगार बन जाती हैं। The 44-meter tall Jaipur column at the center of the avenue leading up to the forecourt, topped by the Star of India. And here you're getting a glimpse of the entire vista. और इधर विजय चौक पर माननीय प्रधानमंत्री की कारों का काफिला पहुंचता हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है
विजय चौक पर। As the President of India, Shri Ramnath Kovind, leaves the forecourt of Rashtrapati Bhavan here at Vijay Chowk, is the arrival of Prime Minister Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन। माननीय प्रधानमंत्री जी जनमानस में अति सम्मानित हैं। आजादी का अमृत महोत्सव है, विशेष अवसर है और आज बीटिंग रिट्रीट समारोह है और आगमन हो रहा है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। शौर्य और संवेदना के शिखर, जन आस्था के अडिग प्रतीक माननीय रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उनकी अगवानी करते हुए जनमानस से एक खास कनेक्ट, एक खास जुड़ाव है, लगाव है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हर भारतीय से ये जुड़ाव वो महसूस करते हैं और हर भारतीय ये कनेक्ट महसूस The dignitaries now here await the arrival of the President of India. माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला धीरे धीरे रायसीना पहाड़ी से विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ और यहां विजय चौक पर आगमन हो रहा है भारत की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति जी की पत्नी श्रीमती सविता कोविंद का। Mrs. Savita Kovind arriving here at Vijay Chowk, the First Lady of India. कुछ ही समय में माननीय राष्ट्रपति महोदय हमारे मध्य पधारेंगे। And in a short while from now, military melodies will magically transform the reverberations here. The light breeze will pick up the notes and will suffuse the air with sentiment and pride. The fragrance of brotherhood of our coming together to foreground our country, keeping us standing still in the moment. आज के इस समारोह के प्रिंसिपल कंडक्टर यानी प्रधान संचालक हैं नेवी के कमांडर विजय चार्ल्स डी क्रूज। कमांडर विजय चार्ल्स डी क्रूज डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक नेवी। थल सेना बैंड के कंडक्टर हैं सूबेदार मेजर जी बीजू। नौसेना बैंड के ऑनररी सब लेफ्टिनेंट विंसेंट जॉनसन। वायुसेना के वारंट ऑफिसर अशोक कुमार। पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड सूबेदार मेजर मलकीत सिंह। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बैंड इंस्पेक्टर एम पंकज रावत। ब्यूगलर्स की जिम्मेदारी संभाली है सूबेदार यू श्रीनिवासुलू ने। कुल 26 धुनें होंगी आज के इस कार्यक्रम में, लगभग 1000 संगीतकार। And now 46 buglers will herald the arrival of the President.
बिगुल का उद्घोष सूचक है देश के प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन हो रहा है विजय चौक पर। The arrival of the President of India and Supreme Commander of the Armed Forces, Shri Ramnath Kovind, here at Vijay Chowk for the beating retreat ceremony, माननीय our 73rd Republic Day celebrations. रामनाथ कोविंद जी का शुभागमन हो चुका है। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्र सल्यूट पद्यम सेक्शन सैनिकों कदम कदम।
समापन समारोह समाप्त हुआ। बैंड को ले जाने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जय हिंद। देवी और सज्जनों, अब प्रोजेक्शन मैपिंग एवं ड्रोन शो का कार्यक्रम होगा। आजादी का अमृतकाल, जब पूरा देश आजादी का अलख जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं देश की अखंडता बनाए रखने वाले शूरवीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हमारी चेतनामयी सांस्कृतिक विरासत एवं शाश्वत सनातन परंपराओं की नींव पर देश नए भारत के सपने को साकार कर रहा है। वो मशहूर पंक्तियां याद आती हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। कितने पावन है लोग यहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं। देवी और सज्जनों, दुनिया के मानचित्र पर विश्व गुरु सा उभरता उदीयमान भारत, आइए इसके गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के संकल्प को दोहराते हैं। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है ये। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है ये। क्रांति का प्रवाह कभी मिटने ना पाएगा। 135 करोड़ दिलों में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा, कभी झुकने ना पाएगा। मैं भारत हूँ। मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ।
मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ, संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ, स्वतंत्रता की सुगंध से हंसा हूँ, न्यू इंडिया बनकर फिर से खिला हूँ। मैं भारत हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण के वचन हमेशा याद रहते हैं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, यानी मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। मैं कर्मयोग के सिद्धांत पर चलता हुआ गतिमान नया भारत हूँ। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमक रहा है। न्यू इंडिया बनकर मैं चला, दौड़ा, लेकिन रुका कभी नहीं, झुका कभी नहीं, डरा कभी नहीं। यहाँ फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, ज़मीन हिंद में उन्हें जवान कहते हैं। दुनिया में हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। एक तिरंगे तले आके हम सब जन गण मन गाते हैं। उसी जन गण मन के दिव्य सुरों के बीच तिरंगे के पार्श्व में नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक की प्राचीर पर पहली बार प्रस्तुत है देश की 75 वर्षों की विजय यात्रा जीवंत करता एक अनोखा लेजर शो। नमन कृतज्ञ राष्ट्र का मां भारती के अमर सपूतों के प्रति, नमन हमारी अखंडता को, नमन हमारी विविधता में एकता को। So ladies and gentlemen, please sit back and admire the projection mapping. जब बर्फीले श्वेत सियाचन में, रेतीले ठंडे मरुथल में, लहराते हर सागर में, स्याह घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, जब सागर जंगल ऊंघे हैं, विश्राम करे अपना वितान, भारत रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर रातों जाग जाग टहरा देते हैं वीर जवान। क्या है जो इन्हें बचाना है, क्या है जो इन्हें सजाना है, क्या है जिसके ये रक्षक हैं, किस धाती के संरक्षक हैं, क्या है दिन रातों की चिंता, क्या है इनका जीवन मुद्दा। ये भारत केवल देश नहीं, भारत तो अपनी माता है। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है। इतिहासों से भी बहुत पुरानी, अनादि अनंत ये गाथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यहीं यज्ञ और हवन सजे, थे 6 दर्शन भी यहीं जगे, थे 4 धाम भी यहीं बने, अलग सनातन की जागी, धम्मम शरणम के मंत्र जगे। नवकार मंत्र गूंजा यहाँ पर, एक ओंकार के बोल बजे, गिरजे गुरुद्वारे मस्जिद यहाँ, अग्यारी गोपुर शिखर रचे। धरोहर यही बचाने को, ये मूल्य अमूल्य सजाने को, भारत की जोत जगाने को, सैनिक हैं अपने खड़े हुए, काली रातों में जगे हुए, तूफानों में हैं डटे हुए। सदियों पहले भी भारत पर जब भी कोई संकट आया था, वीरांगनाओं ने और वीरों ने रणभेरी बिगुल बजाया था। जब आतंकी अंग्रेजों ने भारत को किया अंधेरा था, तिलका तीरथ खरिया बिरसा ने गोरों को बहुत खदेड़ा था। रानी चिन्नम्मा झलकारी कौंडिल्यों ने थर-थर घेरा था। फिर मंगल तात्या बेगम रानी लक्ष्मी ने किया सवेरा। फिर आए लाल बाल और पाल, अरविंद गोखले तोड़ने जाल,
और बापू गांधी ने आकर जागृत कर डाला देश निढाल। मौलाना नेहरू, राजा जी, मुंशी सरोजनी और सरदार सब मिलकर लग गए करने में आजादी का सपना साकार। प्राणाहुति देने वीर पुत्र थे लगे लिए मन में विश्वास। बिस्मिल, अशफाक और सिंह भगत, दुर्गा देवी, आजाद सुभाष। बलियां दे देकर अपनी जो आजादी हमने है जानी, प्राण अपने देकर उसे बचाने लगे हैं अपने सेनानी। है उन्हें बचाना भारत को, रक्षित रखना है देश अपना। दिन रात बढ़े भारत का मान, यही एक इनका सपना। 75 वर्षों में हमने कई नई चोटियां हैं लांघी। आधार दिया हर जनगण को, कोई मजलूम नहीं बाकी। 75 वर्षों में हमने एक ऐसा देश बनाया है जिसकी अनेकता में एका कोई और समझ ना पाया है। 75 वर्ष हुए भारत नवभोर सूर्य सा हुआ उदित। आज उसी उषा का हम सब मिल है मना रहे उत्सव अमृत। ये नई उषा अब हम सबको उस मंजिल तक है ले आई जहां भारतवासी सभी बराबर, कोई बस्ती नहीं छूट पाई। हर युवा उद्यमी उत्साही, सब स्वस्थ सुरक्षित और सुखी। हर गांव स्वच्छ, हर नगर हरा, उन्नति दिखती है चतुर्मुखी। सामाजिक न्याय मिला सबको, महिलाओं ने पाए अधिकार। रस में आनंदित हर कोई, भारत माँ की है प्रेम धार। अब चर्चा यही चले घर घर, देश अपना हुआ है आत्मनिर्भर। छुआ चंद्र अंतरिक्ष मंगल ग्रह, वैज्ञानिक विद्व प्रवीण प्रखर। ऐसे ही नए इंडिया के, इस देश सुनहरे बढ़िया की रक्षा करते अपने रक्षक। हर आतंकी इनका दुश्मन जो बना फिरे भारत भक्षक। वैसे हराने वाले को ये देश सदा देता सम्मान। पर अगर शत्रु ने पांव धरा, घर घुस मारेंगे लो ये जान। ऐसों के दृढ़ संकल्पों से, ऐसे ही प्रवण प्रकल्पों से कल नया सवेरा आएगा। देश और गर्वित हो जाएगा। ऐसे एक स्वप्निल भारत का आधार आज तैयार खड़ा, अब कोई रोक न पाएगा। भारत अब ऐसे द्वार खड़ा, अब साथ विकास विश्वास से सबके भारत होवेगा और महान। इस नए सवेरे में अब जब फहराता है अपना वितान, जय हिंद कह के मुस्काता है, तब हर सरहद पर डटा जवान। जमीन पर हमारे जांबाज और आसमान पर हमारे ड्रोन्स। सैकड़ों ड्रोन्स की परफेक्ट सिंक्रोनी आज आत्मनिर्भर भारत की इबारत आसमान पर चमकेगी। इस ड्रोन शो के पीछे है IIT दिल्ली का एक युवा स्टार्टअप बॉटलैब डायनेमिक्स, जिसने 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। इसके फाउंडर मेंबर्स हैं तन्मय, अनुज और डॉक्टर सरिता अहलावत। बॉटलैब की ये टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोग्रामिंग पूर्णतया स्वदेशी है। और तो और बॉटलैब टीम ने इनोवेशन से इसकी लागत को 1/3 कर दिया है। हमें गर्व है कि अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद हमारा देश चौथा ऐसा देश होगा, क्योंकि हमारे ये युवा भारत के आकाश में ऐसा इंद्रधनुषी भविष्य देने को तत्पर हैं, जहां दुनिया की सबसे एडवांस्ड UAVs का वर्चस्व होगा। तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में रातें तोड़ मरोड़ के। जनगण मन सम्मान हमारा, वंदे मातरम जान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है।
थाम तिरंगा, करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। हिंदुस्तान पिस्तौल से तेजस विमान तक, ड्रोन से मंगलयान तक आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान गढ़ता न्यू इंडिया। हथियारों के साथ साथ विचारों की वो आत्मनिर्भरता जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम में निहित है। नए भारत के सूर्योदय की छटा को अद्भुत आकृतियों द्वारा क्षितिज पर सजाते हमारे युवाओं के ड्रोन्स। अमृत महोत्सव में रायसीना की पहाड़ियों पर नया इतिहास रचते हमारे पूर्णतः स्वदेशी ड्रोन्स। आइए स्वागत करते हैं हमारे नन्हे जगमगाते जादूगरों के करिश्मे का। साहस, शौर्य और पराक्रम का केसरिया रंग, शांति, सौहार्द, अमन का श्वेत वर्ण, उर्वरता, पवित्रता, समृद्धि की हरित द्युति, ये तीनों जैसे ही एक साथ आते हैं, हर भारतीय के मन में एक जल तरंग सी बज उठती है। फिर चाहे वो भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बसता हो। भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है। तभी तो हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम विश्व की विभिन्न पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौए जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? अगर हम भारत के मूल तत्व को खोजें तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वे हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हार्ड मांस का मानव सचमुच का भी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया। उनके साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करते हुए हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों ने भी कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर पर उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र व रक्षक चक्र नाम के 4 चक्र, जिनके ऊपर शान से खड़ा है एक विजय स्तंभ
जिसके अंदर दिन रात जलती रहती है एक अखंड अमर जवान ज्योति। सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। अब वैक्सीन से वायुयान तक, दमदार रॉकेटों से युद्धपोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारोबार तक, हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नवाचारकर्ता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नए समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 साल पूरे कर अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का मुहूर्त है। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं, जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है। इस अनूठे, अनोखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा ध्रुव तारा है, हमारा कुतुबनुमा, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो है हमारा तिरंगा, जिसके 3 रंग सदा हमें प्रोत्साहित करते, अनेकता में एकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत्पर, सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं। आज आइए हम सब मिलकर फिर से अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करें और शपथ लें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। वंदन करें हम सब अपनी भारत मां का और एक समवेत स्वर में कहें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
ask the question